myself Sunil। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लास 6 से आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार रिव्यू करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स constant along with arithmetical operators variables, constant, arithmetical operators. In variables we generally use a, b, c, d, x, y, z, etc. In constant we use the numbers just like 2, 3, -1 by 2, etc. And arithmetical operators plus, minus, division and multiplication. It means an algebraic expression contains variable, constant and arithmetical operators. Variables a, b, c, d. We can use any of the symbol also. In constant we generally use the integers or numbers 2, 3, -1 by 2. Arithmetical operators we use plus, minus, division, multiplication, etc. When all of them combine together, they form algebraic expression. As for example 2x plus 3, 4x square plus 5x plus 1. These all are the examples of algebraic expression. These algebraic expressions have been named according to their terms. Algebraic terms. Terms means algebraic term. Algebraic term is separated by plus or minus symbol. In 2x there is no plus and minus symbol. There is only one term. And when there is only one term, then it is called monomial. Only one term. So it is named monomial. Mono means eight. A monomial means contains only one term. When we write down 2x plus 3, it is separated by plus symbol. How many terms are there? 2 terms. Then it is called binomial. When it contains 3 terms, 4x square plus 5x plus 1, how many terms? 3 terms. Then it is called, first is called monomial when one term, when it contains 2 terms is called binomial, and when it contains 3 terms, mono means 6, bi means 2, just like trinomial. It contains 3 terms. According to algebraic terms means separated by plus or minus symbol. When there is no plus and minus symbol, then it contains only one term, then it is called monomial. 2x, only one term, it is called monomial. Mono means 8, so monomial, only one term. 2x plus 3, 2 terms, it is called binomial. When it contains 3 terms, here is separated by 2 plus symbols. It may be have minus also, then there is no effect. How many terms are there? 3 terms. 1, 2, 3. One is plus symbol, another is minus symbol. It also contains 3 terms, so it is called trinomial. तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स के हिसाब से नेमिंग किए तो 3 हुआ, एक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसके बाद 2 अलग से छोटा सा टर्म्स पढ़ेंगे। एक को
बोलते हैं वेरिएबल। पहले भी बताया है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको वेरिएबल कहेंगे। जनरली लिखे एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा, ABCD के फॉर्म में रहेगा। दूसरा लिखे कांस्टेंट नंबर्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म पढ़ेंगे। इस दोनों टर्म को तो पहले ही पता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर से पता है। एक टर्म है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, जो मल्टीपल हो किस चीज का? वेरिएबल का। एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना हो तो यहाँ पे x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? इस x स्क्वायर का मल्टीपल कौन? 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। In x, the coefficient of x is what? -5। तो कोएफिशिएंट का मतलब सिंपल सा क्या समझेंगे? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल्स को, then it is called coefficient। मतलब मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, x स्क्वायर का मल्टीपल 2, तो कोएफिशिएंट 2। ये 2 कोएफिशिएंट है। इन -5x x का कोएफिशिएंट कौन है? तो -5। तो इस तरह से क्या हम लोग समझे लेडिक एक्सप्रेशन वेरिएबल कांस्टेंट, पहले भी डिफिनेशन में बताया। और एक टर्म पढ़े हम लोग कोएफिशिएंट। क्या पढ़े हम लोग? कोएफिशिएंट। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशंस के ऊपर कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो बुक्स में बहुत लंबी चौड़ी डिफिनेशंस दी हुई है, उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में बहुत डिफिनेशन है। एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल एक लाइन का डिफिनेशन है। क्या है वो? कि पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब जिसका पावर नेगेटिव ना हो। मतलब पॉलिनोमियल्स कौन होगा? तो जिसका पावर नेगेटिव नहीं हो। तो पावर कैसा हो? तो पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स होना चाहिए। तो when any of the algebraic expression having the non-negative integral powers, then it is called polynomials। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा algebraic एक्सप्रेशन जिसका पावर नॉन नेगेटिव हो, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मींस आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 27, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और फिर आप लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है? सब का पावर प्लस में। तो यहाँ x का पावर क्या प्लस में है, इसलिए पॉलिनोमियल। x का पावर प्लस में है, पावर यहाँ पर कितना है? 1, ये भी पॉलिनोमियल है। इसका x का पावर 3 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? सबका पावर प्लस में। अब बात आता है कि एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड आएगा, इसके डिफिनेशन पर बेस्ड। क्या आएगा? तो एक क्वेश्चन देगा, फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ द इज नॉट पॉलिनोमियल। कौन उसमें पॉलिनोमियल नहीं है? तो डिफिनेशन से तो सिर्फ हम लोग इतना समझें कि जब पावर क्या हो? पॉजिटिव हो तो वो पॉलिनोमियल्स है। तो अब बात है कि पॉलिनोमियल सब कब नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स क्या है ये तो जान गए, लेकिन पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? तो फर्स्ट याद रखिएगा, जब पावर नेगेटिव हो।
जब पावर क्या हो, निगेटिव। मतलब अगर लिखा हुआ हो x टू दी पावर -2 प्लस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर x का पावर क्या है, माइनस में है। तो x का पावर माइनस है तो मतलब क्या, इसका पावर माइनस में है। तो जब पावर माइनस में रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा क्या, सेकंड क्या, जब पावर फ्रैक्शन में हो, अगर पावर फ्रैक्शन में दिया हो तब भी क्या होगा, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जैसे आप लिखते हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 3, अदरवाइज लिखते हैं x माइनस 2/3 प्लस x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल में नहीं है। ये नहीं कि माइनस में चला गया पावर, इसलिए नहीं। आप ऐसे ही अगर लिखते हो x टू द पावर 7/5 प्लस x स्क्वायर प्लस 6, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कब नहीं है, इस पर एक क्वेश्चन रहेगा। तो दो रूल्स याद रखना है कि जब पावर निगेटिव में हो तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, या जब पावर फ्रैक्शन में रहेगा तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस पर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, क्या, चूज विच वन इज पॉलिनोमियल और विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल। ये आपको इस तरह का एक्सरसाइज आधे सवाल में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। क्या, तो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल कब है, तो जब पावर प्लस में है। पॉलिनोमियल कब नहीं है, तो जब पावर निगेटिव में हो या जब पावर फ्रैक्शन में हो। कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन इस तरह भी लिखा हुआ रहता है, 2/x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2/x²। तो पावर यहां पर क्या है, 2/x²। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × x पावर -2 माइनस 3x प्लस 7। तो इस तरह से भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के रूल से जब इसको ऊपर ले जाएंगे x का पावर -2 हो जाएगा। मींस अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप ये सोचेंगे कि हाँ पावर प्लस में है तो सर ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। नहीं, आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर -2। तो ये पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, तो जब पावर निगेटिव में होगा, जब पावर फ्रैक्शन में होगा। 1 मार्क्स एवरी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन देंगे छोटा मोटा, स्टैंडर्ड 9 में टर्म 1 का एग्जाम हो, पीरियड 1 का एग्जाम हो, उन सब में रहता है क्या, कि आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। उसी के बाद नेक्स्ट टर्म पढ़ना है, वो दिया हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, जो सबसे ज्यादा पावर हो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लिखते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 6, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना, 3। तो इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका, तो डिग्री 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। आप लिखते हो 2x² माइनस x प्लस 3, इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री 2 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर आप दिया हुआ हो, जब मैक्सिमम पावर होगा उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, चेक करने के लिए बच्चों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चूज करना रहता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में चेक करने के लिए बच्चों को कि थोड़ी सी बहुत ज्ञान है या नहीं, थोड़ा सा समझे कि नहीं, इसके लिए एग्जांपल है तो 4x माइनस 5x² प्लस x³ बाई x लिख देते हैं टीचर्स। तो आपको यहां देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो बच्चे डायरेक्ट यहां देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो हां सर मैक्सिमम पावर x है, x का पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है यहां पर, तो x का पावर यहां 3 है, तो ये नहीं कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गया। थोड़ा सा सोचेंगे भी, क्लास 8 में आप सीखे हैं फैक्टराइजेशन, तो आप यहां पे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे। आप इस तीनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में x कॉमन आ रहा है, बचा क्या इसमें 4, क्या बचा -5x, फिर क्या बचा x²,
बाई एक्स। आप सिंप्लीफाई कर दिए, x से x कट कर गया, अब क्या बचा 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ x का पावर मैक्सिमम कितना 2, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। क्यों कभी कभी क्वेश्चन दे देंगे सर चेक करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है टीचर आपको फैक्टराइज करने के मोड में दे दे क्वेश्चन, क्या दे दे, जैसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन कहे एग्जामिनेशन में क्या कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज दे क्वेश्चन में टीचर व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आंसर इसमें तो कुछ नहीं कट रहा है ना, क्लास 8 में आप पढ़े हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला सबको याद है a प्लस b इंटू a माइनस b। आप फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़े हैं तो आप इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 कट, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना रहेगा, तो यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। अब थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन देना है टीचर्स को चेक करने के लिए कि बच्चे फैक्टराइजेशन जाने कि नहीं, फैक्टराइजेशन पढ़ के आए कि नहीं। एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको क्वेश्चन दे दिए टीचर x³ माइनस 27 बाई x माइनस 3। अब कैसे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से 2 होगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे काट देंगे ऐसे x, ये गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं करता है, इस तरह से करेंगे तो गलत होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको क्या लिखेंगे x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब बाई x माइनस 3। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बाई x माइनस 3 कट कर दिया। अब इसका पावर कितना बचा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 में बच गया, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ 2, इसका डिग्री कितना हुआ 2 हुआ, 2 हो गया इसका डिग्री। यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज कर लो a³ माइनस b³ फॉर्मूला याद रखेंगे जिनको याद नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला और भी पढ़ेंगे आप, दिया हो रहेगा a³ प्लस b³ फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में, आप याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो ये तो पहचाने कि हमें कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, आइडेंटिफाई किए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहचानने के लिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ सकता है। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले आखिर पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। अगर लिखा हुआ है px को कैसे पढ़ेंगे, px को पढ़ते हैं पॉलिनोमियल हैविंग द वेरिएबल x। इसका पूरा मतलब होता है px लिखे मतलब पॉलिनोमियल हैविंग द वेरिएबल x, मतलब उस क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या यूज होने वाला है, तो केवल x यूज होना है। अगर मान लीजिए py लिखा है तो आप समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल्स हैविंग द वेरिएबल x के बदले क्या y। अब किसी क्वेश्चन में pt भी लिख के दिए हुए आपको वर्कशीट में, तो pt का मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स हैविंग द वेरिएबल t, पॉलिनोमियल्स हैविंग द वेरिएबल t। तो px का मतलब क्या समझे, पॉलिनोमियल्स हैविंग द वेरिएबल x, मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स यूज हो रहा है वो x के फॉर्म में हो रहा है। py मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल y हो, जस्ट लाइक pt। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग डिग्री पढ़े हैं, डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। किस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका यूज पढ़ेंगे अभी जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे।
उससे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम यहाँ नाम लिखते हैं, नेम, मतलब पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। इसका जनरल टर्म आपको बुक्स में नहीं मिलेगा क्लास 9 के। इस जनरल टर्म का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज होता है जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं तब। देन इसका एग्जाम्पल, और इसी में एक टर्म हम लोग जोड़ेंगे, जीरोस। एक टर्म क्या पढ़ेंगे, जीरो पढ़ेंगे कि कितना जीरो हो सकता है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जिसको प्लेस करने के बाद कोई भी पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो में बदल जाता है। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जीरो में बदल जाता है का मतलब क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब किसी कांस्टेंट वैल्यू का यूज करेंगे। इसका डेफिनेशन में दिया हुआ रहता है बुक्स में, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड px of, a real number alpha is called 0 of px, 0 of px when p alpha equals to 0। जब p alpha equals to क्या हो जाए, 0। मतलब जहां जहां पॉलिनोमियल में x का यूज हुआ है, अगर ये अल्फा कोई अननोन वैल्यू डालते हैं, अगर वो 0 में बदल जाए तो उसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब जैसे आप लिखते हैं x प्लस 3 का जीरोस क्या होगा, तो x प्लस 3 का जीरो क्या होगा, मतलब x का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि पूरा का पूरा जीरो में बदल जाए। आप इसको सिंपलीफाई करें क्या होगा, x इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल्स टू -3 का मतलब जब x की जगह पर -3 डालेंगे तो पूरा का पूरा जीरो, यहां चेक भी कर सकते हैं, -3 प्लस 3 कट जाएगा, जीरो हो गया। मतलब इस px, अगर आपका px आप लिखते हैं px इक्वल्स टू x प्लस 3, तो इसका जीरो क्या होगा, -3 होगा। px इक्वल्स टू x प्लस 3 है, इसका जीरो निकालना है, तो इसमें जीरो क्या होगा, x का वैल्यू -3 होगा। अगर px इक्वल्स टू x प्लस 3 है तो इसका p0 निकालना है, तो p0 क्या होगा, x इक्वल्स टू -3। मतलब जितना पावर उतना जीरो। आप एग्जांपल अपने सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सपोज कि जो आप लिखते हैं 2x² - 3x + 1, ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 2, तो इसका जीरो भी 2 होगा। आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं, 2x² - 2x - 6 + 1, फैक्टराइज के 2x कॉमन लिया तो x - 1, -1 कॉमन लिए तो x - 1, तो क्या है, x - 1 इंटू 2x - 1। अब इसका जीरो निकालना है, x - 1 का भी जीरो निकालेंगे और 2x - 1 इक्वल्स टू भी जीरो। तो x का वैल्यू कितना, 1, इसमें x का वैल्यू कितना, 1/2। मतलब इस पॉलिनोमियल, इस px का 2 जीरो होगा। कौन कौन होगा, एक 1 होगा, मतलब x की जगह पे 1 डालेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। x की जगह पे 1/2 डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जीरोस का मतलब, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसको आप px में x की जगह पर प्लेस करें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताएं, इसलिए कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, एग्जामिनेशन में रहेगा जीरो निकालने के लिए कितना जीरो हो सकता है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या रहेगा, ax + b where a should not be equals to 0, जहां पर a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स जनरल टर्म इज ax + b where a should not be equals to 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे x में
तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा केवल b, देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। और इसको आगे बताएंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और a और b क्या है यहाँ पे? रियल नंबर्स। a और b क्या है? रियल नंबर्स। x यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज किए हैं। इसका एग्जांपल 2x + 3। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोले? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर x का पावर 1 है, इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल। तो पावर 1 है तो जितना पावर उतना जीरो, तो इसका जीरो एक निकलेगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का 1 एक ही जीरो निकलेगा। और वो जीरो क्या होगा? तो -3/2। कैसे लिखे? आप लोग भी जानते हैं करना। 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। तो हमारा जीरो क्या हो गया? 2x + 3 का अगर एग्जांपल लिखे क्या है इसका जीरो क्या होगा? आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल टर्म ax² + bx + c। सेम चीज क्या? तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? आप a की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? bx + c। x का पावर कितना बचा? 1। तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर कितना है? 1। इसलिए यहां पर लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल टर्म ax² + bx + c होगा, a का वैल्यू 0 नहीं होगा। एग्जांपल x² - 4, 2x² - 3x + 1। ये दोनों ही एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब बात है इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? तो पावर कितना है यहाँ पर? 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा, मतलब 2 जीरो निकल सकता है। अब कोई सर यहाँ x² - 4 लिखा हुआ है, तो इसका पॉलिनोमियल 2 कैसे होगा? तो x² - 4 = 0, देन x² = 4। x = क्या लिखेंगे? +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4। तो x का वैल्यू कितना? 2 जीरो आया, एक +2 और दूसरा -2। अगर इसके जीरोस की बात की जाए तो 2 0 बाई 2 और एक -2, दोनों में से कोई भी वैल्यू 2 या -2 डालेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 निकल जाएगा। अब 2x² - 3x + 1, इसका पॉलिनोमियल कितना होगा? तो जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स बताए थे आपको, फिर से इस एग्जांपल को देखते हैं। इसको हम लोग फैक्टराइजिंग करेंगे, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं, फिर इस क्लास में भी पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन आगे। तो 2x² - 3x + 1, फर्स्ट इनटू थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। तो 2x² मल्टीप्लाई करके आया, हमको यहाँ 3x लाना है, तो 2 × 1 = 2, तो क्या लिखेंगे? -2x - x + 1। 2x कॉमन ले लिए, x - 1 -1 कॉमन लिए, x - 1 क्या है? x - 1 2x - 1। इट मींस x का वैल्यू क्या है? 1, और क्या आ गया x का वैल्यू? 1/2। तो इसका जीरोस क्या क्या हो गया? इस इक्वेशन का जीरो क्या क्या हो गया? एक 1 हो गया, एक 1/2। आप दोनों में से किसी को भी डालेंगे, वैल्यू 1 डालेंगे फिर भी, और 1/2 डालेंगे देन। बोथ कंडीशन, अगर आप 1/1 यूज करते हैं या 1/2 यूज करते हैं, दोनों कंडीशन में इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस इक्वेशन का इस पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर कितना था? 2 था। थर्ड, ठीक उसी तरह से होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल टर्म ax³ + bx² + cx + d। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? ढक दिए इसको, देखिए क्या बच गया? bx² + cx + d। x का पावर कितना हो गया? 2। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। कब?
जब a का वैल्यू 0 होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। जनरल टर्म ax³ + bx² + cx + d। एग्जांपल आप लिख सकते हैं x³ - 27। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को निकालने के लिए, अगर आपको जीरोस निकालने के लिए दिया जाए क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल और भी बहुत सारा आप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्कशीट है जो आपको होमवर्क में दिए हैं, जिसमें आपको निकालना है क्या, तो चेक करना है कि इसका कितना नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है, कितना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो वर्कशीट आपको मिलेगा। आपको वर्कशीट में जैसे एग्जांपल्स आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिया x³ - 2x² - x + 2, ये आपको एग्जांपल के लिए हम दिए। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका कितना जीरो होगा? तो इसका जीरो 3 होगा। कैसे होगा? तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। दिया हुआ क्या है आप लोग को? एग्जांपल्स आप लोग को वर्कशीट में मिलेगा, जीरोस निकालने के लिए उसमें दिया हुआ है, उसमें एक सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। इसका जीरो 3 होगा कैसे? तो लिखें x³ - 2x² - 2x + 2। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इस दोनों में कॉमन x² तो बचा क्या? x - 2। इस दोनों में कॉमन क्या आया? x² कॉमन लिए, x² कॉमन लेते हैं, x - 2 -1 कॉमन लिए तो क्या बचा? x - 2। दोनों में कॉमन क्या आया? x - 2। बचा क्या है? x² - 1। तो x - 2 x² - 1 को आसानी से लिख सकते हैं x + 1 x - 1। तो तीन अलग अलग मिला x का मल्टीपल्स, एक x - 2 x + 1 x - 1। तो इसका जीरोस कितना हुआ? 3 जीरोस हुआ। कौन कौन? एक 2, एक -1 और एक 1। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्लास 10 में जाएंगे तो एक और मिलेगा y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात, इसका जनरल ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। इसमें भी क्या? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पहले बताया, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ तो 0 हो जाएगा। बचा क्या? bx³ + cx² + dx + e। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल बदलेगा। कब बदलेगा? तो जब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल